सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। Hello everyone, I am Dr. Shaili Dikshit from Mathematics Department of Parishkar International College welcomes you. Student, our today topic is partial differentiation. Partial differentiation is the topic of differential calculus and differential calculus is paper second of BA BSc first year. Now students, before going to the topic, I want to say that subscribe our YouTube channel which is Parishkar Bird and don't forget to press the bell icon for further notifications and also subscribe our YouTube channel for Parishkar College and press the bell icon. Now students, first of all we will discuss the syllabus of Rajasthan University. Syllabus of Rajasthan University contains 5 units and from each unit 2 questions asked. You have to solve only 1 question out of 2. Now each question is of 8 marks. For unit first, 1 question comes from series, convergence of series, and another question comes from mean value theorem. You have to solve only 1 question either from this or from this. Now students, for BA students, for each question is of 11 marks and for BSc students, each question is of 8 marks. Second unit, in second unit, 1 question comes from derivative of length of an arc and pedal equation and another question comes from curvature and partial differentiation. Partial differentiation is our today topic. Also for BA students 11 marks and for BSc students each question is of 8 marks. Now in unit 3rd, 1 question comes from envelope and maxima and minima and another question comes from asymptote, multiple point and curve tracing. For BA students, each question is of 10 marks and for BSc students, each question is of 8 marks. Now in unit 4, question comes from integral calculus. Integral calculus, 1 question from gamma and beta function and another question comes from double and triple integration. Now students, last unit, 5 unit, 1 question asked from area of plane curves which is quadrature and length of plane curves rectification and another question comes from volume and surface of solid of revolution. Now students, here are some important questions of partial differentiation for Rajasthan University. Question first, if u equal to tan inverse xy upon under root 1 plus x square plus y square, then prove that del 2u upon del x del y equal to 1 upon 1 plus x square plus y square to the power 3 by 2. Second question, if x to the power x, y to the power y, z to the power z equal to c, then show that at x equal to y equal to z, you have to show del 2z upon del x del y equal to minus x log ex to the power minus 1. And third question is, if u equal to fr where r square equal to x square plus y square, then prove that this del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 equal to f double dash r plus 1 upon r f dash r. Now students, we will discuss these questions later. So first of all, टॉपिक का नाम ही पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन तो यूज होगा ही. सो स्टूडेंट्स, लेट्स हैव सम रिकैप ऑफ फार्मूलाज related to differentiation. Now first formula is the differentiation of x to the power n equal to n x to the power n minus 1. N x to the power n minus 1 means if we differentiate 1 upon x, now तब हम x को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे, d differentiation of x to the power minus 1, x to the power minus 1 में minus 1 पावर आगे आ जाएगी और पावर यहाँ पर क्या हो रही है देखिए
स्टूडेंट्स पावर यहाँ पर एक कम हो रही है, इट मीन्स यहाँ पर x टू द पावर -1 सो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विल बिकम -1/x². Note that point students. Now next, differentiation of sin x which is cos x, differentiation of cos x which is sin x minus sin x. Now differentiation of tan x sec square x, differentiation of cot x minus cos x square x, differentiation of sec x tan x, differentiation of cos x minus cosec x cot x, differentiation of log x. You have studied these formulas in 12th. Differentiation of e to the power x and differentiation of tan inverse x 1/1 plus x square and differentiation of cot inverse x minus 1/1 plus x square. Now students, let's some more formulas. Differentiation of sin inverse x which is 1/√1 minus x square, differentiation of a to the power x log a. Now product rule. प्रोडक्ट रूल में अगर दो फंक्शन है, इट मीन्स x sin x, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तब हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. नाउ if we apply product rule in this, first function x as it is, differentiation of sin x का differentiation cos x, plus second function as it is, second function is sin x, and differentiation of first, it means x का differentiation क्या होगा? 1. Okay students, तो product rule हम ऐसे apply करेंगे. Now division rule. What is division rule? If two functions are in divide, then square of denominator, it means v square, v as it is differentiation of u minus u as it is differentiation of v. Okay students, तो ये आपका product rule and division rule था. Now students, come to our topic which is partial differentiation. So partial differentiation को आपको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले समझना है कि differentiation क्या है, और differentiation से भी पहले आपको क्लियर करना है कि constant और variable क्या होते हैं. So let's see what is constant. Constant, a symbol which has a fixed numerical value is called a constant. It means जो जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, निश्चित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट. टॉपिक्स वो नाम से ही क्लियर हो रहा है. कांस्टेंट इट मींस वो वैल्यू क्या है? स्थिर है. फॉर एग्जांपल ये बोर्ड स्थिर है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है. इन मैथमेटिकल कांस्टेंट क्या है? एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक z इक्वल टू x प्लस y प्लस 2, सो हियर 2 इज कांस्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब कांस्टेंट क्लियर है, तो वेरिएबल क्या है? अब वेरिएबल नाम से ही क्लियर हो रहा है. वेरिएबल इट मींस वैल्यू चेंज होती रहती है, वैल्यू इसकी कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती है. नाउ अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट मे चेंज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम. इट मींस मैथमेटिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है. देखिए जैसे यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इट मीन्स यहाँ पर ये z, x और y ये क्या है? वेरिएबल. नाउ स्टूडेंट एग्जाम्पल है z इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. हेयर 4 इज कांस्टेंट, 2 इज आल्सो कांस्टेंट एंड z, x एंड y आर वेरिएबल्स. इन रियल लाइफ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल, रियल लाइफ में एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल क्या होंगे? टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होता रहता है. वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये देखिए ह्यूमन बॉडी का वेट चेंज होता रहता है, कभी मोटा कभी पतला. तो नाउ स्टूडेंट्स, एंड थर्ड एग्जांपल इज स्पीड ऑफ व्हीकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट मींस आपके व्हीकल की स्पीड जो क्या होती है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहती है. तो ये सब क्या है? वेरिएबल, वेरिएट कर रही है, वैल्यू वेरिएट हो रही है. ओके स्टूडेंट्स, now
अब वेरिएबल भी कितने टाइप के होते हैं? वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंडिपेंडेंट इट मीन्स ये स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड इट मीन्स ये किसी पर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, तो जब वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए किस पर डिपेंड करता है? पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। लेकिन पेरेंट्स फ्री हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने काम या अपनी अर्निंग खुद करते हैं। और स्टूडेंट्स जब आप लोग भी क्या हैं, अपने बेसिक नीड्स के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं, इट मीन्स आप डिपेंडेंट हैं पेरेंट्स पर, और पेरेंट क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। सो आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र और डिपेंडेंट मतलब डिपेंड, किसी पर डिपेंड कर रहा है। नाउ स्टूडेंट, एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। मैथमेटिकली y इक्वल टू एफ एक्स, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है इट मीन्स हम ले सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, तो अब यहां पर क्या कर रहा है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ स्टूडेंट्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, if we take x equal to 1, then what is the value of y? 1. If we take x equal to 2, what is the value of y? 2, 4. And if we take x equal to 3, what is the value of y? 9. 3 का स्क्वायर 9. So students, आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1, y कितना आ रहा है? 1। x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। एंड x इक्वल टू 3, y की वैल्यू 9। इट मीन्स हम x की वैल्यू तो खुद ले रहे हैं, तो x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x की वैल्यू के अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज हो रही है। जब y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, इट मीन्स जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे ही y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। सो यहाँ पर y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। तो y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ स्टूडेंट्स, y डिपेंडेंट एंड x इंडिपेंडेंट। अनदर एग्जाम्पल, इफ x इज अ फंक्शन ऑफ y, फॉर एग्जाम्पल we take x equal to y square plus 4, then अब यहां पर क्या है? x is a function of y, so x is dependent variable and y is independent variable. If we take y equal to 2, then what is the value of x? 4 plus 4. It means y की वैल्यू तो हमने अपनी मर्जी से ली, और y के अकॉर्डिंग x की वैल्यू चेंज हो गई। तब यहां पर x क्या है? What is x? x is dependent variable and what is y? y is independent variable. Note that point students. Now अब what is derivative और differential coefficient? इसको समझने के लिए अगर हम देखते हैं कि y is a function of x, then if there is a small increment in x delta x, it means delta x एक small increment हो रहा है किसमें? x में, then x के corresponding y में भी एक small increment हो रहा है delta y. Okay students, now अब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या शो कर रहा है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. इट मीन्स ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x शो कर रहा है। y में क्या चेंज हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, इफ द इंक्रीमेंट रेशियो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x टेंड्स टू अ फाइनाइट लिमिट
as delta x tends to 0, then this limit is called the differential coefficient or derivative of y with respect to x. What is this meaning? It means delta y upon delta x में अगर हम एक लिमिट ले लें delta x tends to 0, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, इसी को ही हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, किसका, y का. नाउ और ये किससे डिनोट होता है, इट इज डिनोटेड बाय dy अपॉन dx. The derivative dy upon dx is also called the rate of change of y with respect to x. It means जो dy upon dx है वो क्या शो कर रहा है कि y में कितना चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. एंड नोट दैट पॉइंट, ये जो प्रोसेस है डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करने का जो प्रोसेस है, हम उसी को ही क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज डिफरेंशिएशन एंड इट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट. नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन. सो स्टूडेंट्स, पहले हमने कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़े, उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, आवर टॉपिक विच इज पार्शियल डिफरेंशिएशन. नाउ पार्शियल डिफरेंशिएशन का अब हमें जरूरत क्यों पड़ी, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों अराइज हुई. स्टूडेंट्स, अपने नेचुरल लाइफ में आपने देखा होगा कि एक ही वेरिएबल नहीं होता, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस रूम में वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करूं, तो वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करने के लिए वॉल्यूम कितना होगा इसका, LBH. LBH लेंथ, विड्थ, हाइट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वॉल्यूम कितने किस किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, विड्थ पर भी डिपेंड कर रहा है और हाइट पर भी डिपेंड कर रहा है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने वेरिएबल हो गए, यहाँ पर 3 वेरिएबल हो गए. नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इन जनरल बिहेवियर y इज ऑलवेज नॉट अ फंक्शन ऑफ ओनली वेरिएबल x. y कैन डिपेंड 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. सो यहाँ पर r एंड h दो वेरिएबल हैं, r रेडियस और h हाइट, रेडियस एंड हाइट. सो स्टूडेंट, यहाँ पर v, r और h दो पर डिपेंड कर रहा है. इट मीन्स यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, r एंड h, एंड v इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल. नाउ लेट्स सी, यहाँ पर रेडियस सेम है तो हाइट चेंज हो रही है, और यहाँ पर हाइट सेम है तब रेडियस चेंज हो रही है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं से पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अराइज होता है. इट मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन में 2 और मोर देन 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. नाउ स्टूडेंट, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को हम एक बार दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे. व्हाट इज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में हमने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू साइन एक्स, एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन में u इक्वल टू साइन एक्स साइन y एक फंक्शन दूसरा ले लिया. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हेयर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, हेयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ऑन हेयर इज 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x and y, and u is a function of x and y. Now here we have to find derivative with respect to x. क्योंकि x एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे. लेकिन यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y, तब हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x और y दोनों के रेस्पेक्ट में करेंगे. नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन. अब y इक्वल टू साइन एक्स हमारा फंक्शन था, तब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x. यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए या तो हम विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, और या फिर हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे.
सो या तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे या y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. सो यहाँ पर ये क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन. नाउ अब पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं. पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये इसका की सेंटेंस है. की सेंटेंस में इन पार्शियल डिफरेंशिएशन इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x देन y कांस्टेंट. इट मीन्स हम अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तब y कैसा रहेगा, कांस्टेंट. और इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y देन x कांस्टेंट. अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में देन क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द की सेंटेंस. हम जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो d को रिप्लेस कर देते हैं. किससे रिप्लेस करते हैं, डेल से रिप्लेस कर देते हैं. इसको उल्टे 6 की तरह लिखते हैं और इसको डेल रीड करते हैं. नाउ स्टूडेंट, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके हैं. y इक्वल टू एफ एक्स, y x का फंक्शन है. सो इसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच. एक्स में इंक्रीज होगा x स्मॉल इंक्रीमेंट h, x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएशन के फार्मूले में u फंक्शन है किस किस का, x और y दोनों का फंक्शन है. इट मीन्स x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच. स्टूडेंट्स नोट दैट पॉइंट, यहाँ पर y में चेंज नहीं हो रहा है. इट मीन्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में y में चेंज नहीं हो रहा, y कांस्टेंट है. चेंज किस में हो रहा है, x प्लस एच और x में. इट मीन्स एफ एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच. नाउ डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई में अब हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं. विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब चेंजेस किस में हो रहे हैं, सिर्फ y में ही चेंज हो रहे हैं, y प्लस एच टू y. और x कैसा है, नो चेंज, नो चेंज. सो x हमारा क्या है, एज ए कांस्टेंट. सो जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं हम ये ऐसे ही इसी ही अप्लाई करते हैं. इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x देन y कांस्टेंट. इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y देन x कांस्टेंट. नाउ स्टूडेंट्स हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल u इक्वल टू साइन x साइन y. हमें इस फाइंड करना है डेल u अपॉन डेल x एंड डेल u अपॉन डेल y. नाउ u इक्वल टू साइन x साइन y. इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन में हम सिर्फ साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे और y क्या रहेगा हमारा, एज अ कांस्टेंट. y कैसा रहेगा, कांस्टेंट. कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते ही नहीं है. इट मीन्स साइन y एज इट इज और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x. सो सिंपल. नाउ इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, जब हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे देन साइन x इज एज अ कांस्टेंट. और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मल्टीप्लाई में है साइन x, सिर्फ साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos y. सो स्टूडेंट डेल u अपॉन डेल y क्या हो जाएगा, साइन x cos y. देखिए d की जगह डेल से रिप्लेस हो गया. और जब हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, और जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब x एज अ कांस्टेंट. नाउ स्टूडेंट हम डेल u अपॉन डेल x को ऐसे भी लिख सकते हैं. डेल u अपॉन डेल x, u फंक्शन u एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन, तो x यहाँ सफिक्स में आ जाएगा. सिमिलरली डेल u अपॉन डेल y, u फंक्शन और y विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y सफिक्स में आ जाएगा. इफ डेल f अपॉन डेल x, तब हम इसको क्या लिखेंगे, f x. और कहीं डेल f अपॉन डेल y है तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, f ऑफ y. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड del u upon del x and del u upon del y, u equal to x cos y plus y cos x. Now
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इट मीन्स y कांस्टेंट रहेगा। जब y कांस्टेंट रहेगा इट मीन्स हम cos y का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, तो सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, x का, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। सो 1 ऐसे ही 1, x का डिफरेंशिएशन 1, cos y एज इट इज प्लस y एज इट इज, क्यों, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ cos x का ही डिफरेंशिएशन होगा, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, y एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, सो डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया। सिमिलरली हम इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या हो जाएगा, x एज अ कांस्टेंट, x एज अ कांस्टेंट। सो इफ वी डिफरेंशिएट cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, सो x एज इट इज, we differentiate cos y, so cos y का differentiation minus sin y, and with respect to y का differentiation 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, और cos x, क्योंकि x एज अ कांस्टेंट है तो cos x का differentiation होगा ही नहीं, cos x एज इट इज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है ना differentiation ऑफ x कितना होता है, 1। सो इफ वी differentiate with respect to y, तो ये कितना हो गया, 1। सो यहां पर भी डिफरेंशिएशन हो रहा है लेकिन पार्शियली हो रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया और डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर में पढ़ने के लिए आप लोग पहले डिफरेंशिएशन पे देखेंगे। डिफरेंशिएशन में अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तब आप उसके हायर ऑर्डर कैसे पढ़ते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट किया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, एक बार और डिफरेंशिएट किया तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसी तरह आपको सिमिलरली मिलते चले जाएंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही एज इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी यही होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इट मीन्स ये एक्स वाई का फंक्शन है, तो नेचुरली ये जब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल आ गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो फिर ये क्या हो जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे आपने डिफरेंशिएशन में किया वैसे ही यहीं पर पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स को फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली u को हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई मिलेगा, और इसको अगेन एक बार विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू मिल जाएगा। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन u है और हमने इसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दिया फिर हम अगर इसे दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे, डेल ऑफ डेल एक्स डेल यू डेल वाई, और फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें ये टर्म मिल जाएगी। सिमिलरली वी कैन राइट इट डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x then we find del u upon del x, or again if we differentiate with respect to y then we can find del 2u upon del y del x. Okay students, now we can write these terms like this, del 2u upon del x2, del 2u upon del x2 को del u upon del x एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x और फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x तो ये del 2u upon del x2 बन गया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u x x. Now similarly if we differentiate with respect to y and again with respect to y then we can write it u y y del 2u upon del y2. Similarly del 2u upon del x del y, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, del upon del x del u upon del y को हम ऐसे लिख सकते हैं और u x y लिख सकते हैं। Similarly del 2u upon del y del x del upon del y del u upon del x को हम
लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू यू वाई एक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर मैं कोई एक फंक्शन ले लूं u इक्वल टू 2x, ओके, then if we differentiate with respect to x, what we get, del u upon del x 2, and we again differentiate with respect to x 0। अब स्टूडेंट्स नोट दैट पॉइंट, यहाँ पर u क्या है, एक ही वेरिएबल है, तब हम इसमें अगर मैं दूसरा वेरिएबल और ऐड कर दूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये क्या बन जाएगा, u इक्वल टू 2x प्लस 2y, इट मीन्स दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 2, y कांस्टेंट, इफ वी डिफरेंशिएट अगेन 0। नाउ इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, देन विद रिस्पेक्ट टू y x कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, नाउ y का 2y का 2। सिमिलरली if we again differentiate, then 0। now student, अगर u इक्वल टू 2x प्लस 2y एक फंक्शन है, एंड इफ वी डिफरेंशिएट del u अपॉन del x, इट मीन्स 2। अब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं, तब हम इसे क्या लिखेंगे, del u अपॉन del x, इट मीन्स del अपॉन del y 2। del u अपॉन del x हमारा कितना आया था 2, तो ये कितना हो गया 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन ऑल ऑर्डिनरी केसेस जनरली del 2u अपॉन del x del y इक्वल होता है del 2u अपॉन del y del x के, और इसे हम uxy इक्वल टू uyx लिख सकते हैं, और दिस इक्वलिटी किस लिए है, इज ड्यू टू कंटिन्यूटी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, फाइंड del 2u upon del x2, del 2u upon del y2, and show that del 2u upon del x del y equal to del 2u upon del y del x. Now u equal to x square y, if we differentiate partially with respect to x and y, इसको with respect to x differentiate करेंगे, with respect to x differentiate करेंगे तो क्या होगा, x square का 2x, y as it is। Now students, if we differentiate with respect to y, it means del u upon del y, del u upon del y में y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा del u upon del y इक्वल टू x स्क्वायर इंटू 1। नाउ if we again differentiate with respect to x and with respect to y, what we get, we differentiate del u upon del x with respect to x, so with respect to x differentiate करेंगे तो x का differentiation क्या हो जाएगा 1, y as it is, और if we differentiate with respect to y तो del 2u upon del y2, y की टर्म है ही नहीं और x हमारा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्या निकालेंगे, del 2u अपॉन del x del y। del 2u अपॉन del x del y को हम ऐसे लिख सकते हैं del u अपॉन del y del अपॉन del x। del u अपॉन del y की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर। अब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी अगेन फाइंड del 2u अपॉन del y del x। पहले हमने उस y का किया था और बाद में फिर x का किया, अब यहाँ पर हम x का डिफरेंशिएशन पहले है और y का डिफरेंशिएशन बाद में कर रहे हैं। सो del u अपॉन del x कितना है 2xy। अब विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका 2x। सो हियर इज 2x। अब स्टूडेंट्स लास्ट स्लाइड में del 2u अपॉन del x del y आपका 2x आ गया था एंड del 2u अपॉन del y del x 2x आ गया, इट मीन्स ये दोनों वैल्यू कैसी हैं इक्वल है, यही हमें क्या करना था शो करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ux y इक्वल टू
uyx. Now example, if u equal to x square y plus y square z plus z square x, then show that del u upon del x plus del u upon del y plus del u upon del z equal to x plus y plus z का whole square. Now students, हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x. पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को. तो देखिए स्टूडेंट्स, नोट दैट पॉइंट, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. जब विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y और z दोनों कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट. तो y कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया. अब नाउ स्टूडेंट, इसमें 3 वेरिएबल हैं, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y एंड z. विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इट मीन्स y और z हमारे कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट. और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. ओके स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा ना डिफरेंशिएशन ऑफ a कितना होता है, 0, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन. नाउ z स्क्वायर x, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 और z स्क्वायर एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो एज इट इज आ जाएगा z स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेन हम डेल यू अपॉन डेल एक्स क्यों निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड. नाउ वी फाइंड डेल यू अपॉन डेल वाई. डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करने के लिए हम इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, और जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स और जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. विद रिस्पेक्ट टू वाई का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर एज इट इज. नाउ विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और z एज इट इज कांस्टेंट है, और z और x दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0. ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी टर्म को विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करूं, विद रिस्पेक्ट टू z, तब क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू z में x और y दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. एंड y स्क्वायर z, y स्क्वायर में y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर ही रहेगा, और z का डिफरेंशिएशन 1. क्यों z का डिफरेंशिएशन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली. नाउ स्टूडेंट्स, y स्क्वायर z का हो गया, अब z स्क्वायर x, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2z, और x का डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते क्योंकि x तो कांस्टेंट है, हम डिफरेंशिएट सिर्फ z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इट मींस y और x एज अ कांस्टेंट. नाउ स्टूडेंट, तो हमारी टर्म क्या आ जाएगी, y स्क्वायर प्लस 2zx. अब हमें इन तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करने पर हमारी टर्म आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. इसको, ये फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, तो मैं इसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ. तो ये हमारा प्रूफ हो गया. स्टूडेंट्स, हमारे आरयू के जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने कहा था कि मैं बाद में डिस्कस करूंगी. सो स्टूडेंट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड देन तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, परिष्कार वर्ल्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. आल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल परिष्कार कॉलेज एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे. थैंक यू. सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे.